बॉन्ड्स की चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड के डेटा को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा से एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने ये डिटेल्स सार्वजनिक कर दिए हैं। चुनाव आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिली है, जबकि टीएमसी को 1,610 करोड़ रुपए मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक पोल बॉन्ड से कांग्रेस को 1,422 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे बड़ा दानदाता फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर है, जिसने 1,300 करोड़ से अधिक का दान दिया है। मामले में आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित कोड साझा नहीं करने पर एसबीआई को फटकार लगाई है। एसबीआई को कल तक सभी डेटा चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि सारा डेटा सामने क्यों नहीं पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 18 मार्च तक इस चूक पर सफाई देने के लिए कहा है। So they said that they don't have copies of that, and therefore unless the court returns them what they had given to the court, they can't reveal that. And we will give you back the originals as well as the digitized data, which will be given to you by tomorrow, and by day after you should upload that. And they said that this information did not include the alphanumeric number of the bonds. So therefore they have not given full information about the people who purchased the bonds as well as the parties who redeemed the bonds, because that should have normally included the number. So the court said that this, at least the numbers in each, the donor as well as for the recipient, should have been revealed, and therefore they have issued notice, because today the Solicitor General said Election Commission, the State Bank is not here, State Bank is not a party, please issue notice to the Election Commission, to the State Bank. So the court has issued notice to the State Bank and listed this matter on Monday to hear this issue. और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हरीश जुड़ चुके हैं। हरीश, देखा जाए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है, वो इसलिए कि उन्होंने डेटा पूरा नहीं साझा किया। अब उनको हर हाल में वो अल्फा न्यूमेरिक कोड भी देना होगा, और वो भी कल तक का उनको समय दिया है। और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आज? Yes, that's right. A very significant question posed by the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud bench to the State Bank of India as to why all the details listed by the Supreme Court has not been given to the Election Commission of India for uploading. The Supreme Court asked why the alphanumeric number, that is the unique number for the electoral bond of the donor and also of the recipient, has not been given. Remember, if the Supreme Court eventually forces the SBI to give all these numbers, it will ensure that who gave which party how much, that will be divulged. So this is in this respect that this question by the Supreme Court is very significant. After the Solicitor General Tushar Mehta said that SBI is not a party before the Supreme Court, so a notice has to be issued. So before issuing such a direction for giving the unique electoral bond number, the Supreme Court has today issued notice to the SBI seeking its answer as to why this number cannot be made public of the donor and also of the recipient, which means that if they are matched, we can very well know as to which individual gave which party how much. This is very significant because earlier this was not possible, because the Supreme Court had not insisted on matching the details of the donor and the recipients, because the SBI said a lot of time will be required for that, not just 26 days, 3.5 more months will be required, and they can do this uploading, in fact they can give all the information only by June 30. But now a shortcut has been found. Supreme Court said that you give you release to the Election Commission of India the unique alphanumeric electoral bond number of the donor and the recipient, and which is very significant, as this will result in
the public getting to know that which party received how much from whom. This is the significance of today's order. Back to you. जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए हरीश। लेकिन वहीं चुनावी बॉन्ड के सार्वजनिक होते ही विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। कांग्रेस, शिवसेना, सीपीआई, एआईएमआईएम ने केंद्र सरकार पर फिक्सिंग और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। विपक्ष ने बीजेपी पर कई हफ्तों तक छापेमारी करने के बाद चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। और वहीं याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने भी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से मामले पर बहस की थी। उन्होंने चिंता जताई कि चुनाव आयोग द्वारा अपलोड की गई चुनावी बॉन्ड की जानकारी क्रम संख्या नहीं दी है, जो कि ये पता लगाने के लिए आवश्यक है कि किसने किसको बॉन्ड दिया है। देखिए, मैं उस पर अभी एक विश्लेषण मैंने किया है, अगले 10-15 मिनट में निकलवा रहा हूं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है, और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं, और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। सोए होंगे इस समय, तो अगर कोई ऐसा विपक्ष के प्रति होता तो तुरंत ईडी उठ के खड़ा हो जाता, सीबीआई खड़ी हो जाती। तो अभी तो कुछ दिन के लिए ये सोएंगे, क्योंकि स्लीपिंग पिल का ओवरडोज ले लिया इन्होंने। बात असली क्या है कि आपको याद होगा, मुझे तो याद नहीं क्योंकि आप तो खबर रखते हो, कि किसी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे याद नहीं किसने कहा था, लेकिन किसी ने कहा था। तो अब उसका क्या हुआ? किसी ने ये भी कहा था कि मैं स्विस बैंक से सारे करोड़ों रुपए जो अवैध डिपॉजिट्स हैं वो वापस लेकर आएंगे, 15 लाख हर शख्स को देंगे, हर नागरिक को देंगे। इन्होंने तो यहाँ से ही ले लिए।